So the name of the topic is combinations. We are starting today. The name of the topic is combinations. Now, what is the meaning of combination? So we have two things here: meaning and the formula. How to use the formula? How to calculate? The calculation part and how to use the formula and the meaning part. These are the two topics. Formula ka calculation, how and what is the formula? What is the application of the formula is the second topic. Now let me begin with the formula ka calculation first. How to do the calculation? First of all, we will begin with this part today. Because without knowing the calculation part, if I explain you the application, I will explain you the meaning, you will not understand much things in this particular topic. So पहले मैं आज क्या करूँगा? पहले मैं फॉर्मूला का कैलकुलेशन समझाऊंगा, उसके बाद में देखना तुम लोग को लिंक करूंगा परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस कैसे इंटर रिलेटेड है और कितना मजा आएगा तुम देखना करके। तो पहले मैं आज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला का कैलकुलेशन बता दूं पहले। ओके, सो the formula is NCR equals to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. But the value of n is greater than or equals to the value of r. Clear? n का वैल्यू r से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब क्यों, अभी बात नहीं बताऊं। क्यों का मतलब मैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कैलकुलेशन पार्ट, हाउ टू डू द कैलकुलेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, वेयर टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई। Clear? What is combination? I have not explained you anything. I'm directly beginning with this particular formula and nothing else. The calculation of this formula. Okay. Now C stands for combination. This much you understand right now, and this is the formula we have. Now let us begin with the formula first. Few questions. जहां पे हम लोग formula का calculation देखेंगे, इस formula को use करके calculation देखेंगे. So let us take suppose 10C2. Suppose we have got 10C2 and इसका हम लोग को calculation करना है. So tell me what is the value of n? It is 10. What is the value of r? It is 2. So let us use this formula. It is n factorial, that is 10 factorial divided by n minus r. 10 minus 2, which is how much? 8 factorial into r factorial, which is how much? 2 factorial. Is this clear? Now let us see the calculation part. You all know that तुम लोगों को पता है कि 10 factorial, 8 factorial, 2 factorial में सबसे बड़ा कौन सा है? 10 factorial. तो हम लोग क्या करेंगे? 10 factorial को 10 into 9 into 8 factorial लेके यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे. Clear? Because denominator से 8 factorial cancel हो जाएगा. So what is left? It is 10 into 9 divided by 2 into 1. So we have 45 as an answer. Okay, 45 is the answer. Next. Now let us determine the value of 10C8. Clear? 10C8. So what is the value of n? It is 10. What is the value of r? It is 8. So it is n factorial divided by n minus r, that is 2 factorial, into r factorial, that is 8 factorial. Alright students? Okay. Now इन तीनों में सबसे बड़ा ये है, देखो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये पार्ट और ये अगर तुम देखो कैलकुलेशन सेम आया ना, देखो तो 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. सो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? 45 ही होगा. ओके, नेक्स्ट लेट अस सी 5C2. इट इज 5 फैक्टोरियल, 5 minus 2 is 3 factorial into r factorial, that is 2 factorial. इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 5 factorial. So we can write this as 5 into 4 and then we will stop here till 3 factorial. You know why? Because instead of writing 5 factorial as 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and writing 3 as 3 into 2 into 1, you know that you have been doing, you have studied this in factorial part, that 5 factorial, 3 factorial और 2 factorial में सबसे बड़ा ये है. तो हम क्या करेंगे? 5 factorial को 5 into 4 into 3 factorial कैंसिल हो जाएगा. So we have 5 into 4 divided by 2 into 1. What is the answer? It is 10. What is the answer? It is 10. Next. Now let us see 5C3.
5c3. So if you apply the formula, it is 5 factorial by 5 minus 3, that is 2 factorial into 3 factorial. अब तुम ध्यान से नोट करो, इसका ये जो पार्ट है, ये कैलकुलेशन, ये देखो एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों क्या सेम है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर और इसका आंसर तो सेम ही आएगा, दैट इज 10. मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा. बिकॉज सी मेरा यही है कहना कि मैं खुद डायरेक्ट पहले नहीं बताऊंगा, मैं पहले तुम लोग से पूछूंगा कि क्या तुम लोग ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में तुम लोग का देखूंगा. ठीक है, तो ध्यान से देखना एक बार, यहाँ कैलकुलेशन से बहुत कुछ ऑब्जर्व करना है, जो ऑब्जर्वेशन में तुम लोग से पूछूंगा, ध्यान रखना. नेक्स्ट, सपोज वी हैव गॉट 7c3. It is 7 factorial, 7 minus 3, that is 4 factorial into 3 factorial. So it is 7 into 6 into 5 into 4 factorial. So we have 7 5s are 35. 7 into 6 into 5 by 3 into 2 into 1, that is 35. And if I ask you 7c4 का value, it is 7 factorial by 7 minus 4, 3 factorial into 4 factorial. अब देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, तो इसका आंसर भी 35 होगा. Now students tell me, if you see all this, I mean 3 calculation, that is 1, 2 and 3, I mean 1 2 3 4 5 6. Now tell me few observation which I want to hear from your side. Tell me, तुम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देख के मुझे बताओ कि क्या तुम लोग ऑब्जर्व किया, यहां से तुम लोग क्या ऑब्जर्व किया, बताओ जो तुम लोग के मन में आ रहा है, एक बार बताओ मुझे. यस, पहला चीज देखना एक बार कि 45 45 ये दोनों का आंसर सेम है, 10 10 ये दोनों का आंसर सेम है, 35 35 दोनों का आंसर सेम है. अब तुम लोग अपना ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ. Sum of I is equals to n. Yes. Yes, tell me. The sum of I is equals to n. Actually, थोड़ा वॉइस तुम्हारा बहुत ज्यादा मतलब समझ में नहीं आ रही. कोई और बोलो. Yes. You can write in the chat box. Yes. Other students, can you just tell me the observation कि ये इसको देख करके तुम लोग क्या ऑब्जर्व किए? इसका आंसर से क्या ऑब्जर्वेशन तुम लोग बताओ तो. मैं एक बार लिखता हूँ पहला ऑब्जर्वेशन. Yes. What do you observe from here? Can you tell me? Anyone? Sir, n minus r factorial into r factorial का sum n होता है. Factorial नहीं, ठीक से एक बार देखो, ठीक से एक बार ऑब्जर्व करो एक बार. Yes. Any other students who wants to try? Yes. Yes. No, see. Okay, I will just tell you. सबसे पहला चीज 10c2 का वैल्यू और 10c8 का वैल्यू सेम. ध्यान देखो 45 45. 5c2 का वैल्यू और 5c3 का वैल्यू सेम है. 7c3 और 7c4 का आंसर सेम है. अब ध्यान से ऑब्जर्व करना तुम. देखो इसका n का वैल्यू और इसका n का वैल्यू सेम है. क्लियर? नाउ व्हाट इज 10 minus 2? 8. व्हाट इज 10 minus 8? 2. इन दोनों का n का वैल्यू सेम है, पहला पॉइंट. What is 5 minus 2? 3. What is 5 minus 3? 2. Okay? अब देखना है, दोनों का n का वैल्यू सेम है. What is 7 minus 3? 4. What is 7 minus 4? It is 3. So we can say that सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि NCR का वैल्यू और NCL minus R का वैल्यू सेम होगा. Now do you all agree or not? Tell me. NCR का वैल्यू और NCN minus R 7 minus 3 4 का वैल्यू, 7 minus 4 3 का वैल्यू, दोनों का n सेम है. n minus R यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखो. So we are finding that 5 minus 2 is 3, and what is 5 minus 3? It is 2. 10 minus 2 is 8, and what is 10 minus 8? It is 2. So we are finding that the value of NCR is same as the value of NCN minus R. Yes or no? Tell me. First observation. Next. Second observation is two combinations are equal when. I'm asking when. This is my question. Two combinations are equal when. Can anyone tell me the relationship? कि जब दो combinations equal होता है तो कब equal होता है? दो combination जब equal होता है तो किस केस में equal होता है? What is the condition? Can you derive the condition from this in calculations which I have shown here? बताओ तो एक बार, दोनों का combination में
अगर वैल्यूज इक्वल आता है तो किस बेसिस पे इक्वल आएगा, किस कंडीशन पे इक्वल आएगा, बताओ। R1 plus R2 equals to n. यस, सबसे पहला चीज दोनों का n का वैल्यू सेम होना चाहिए, नंबर 1, n का वैल्यू तो सेम होना ही चाहिए। नंबर 2, दोनों का r का जो सम है, दोनों का r का जो सम है, अगर तुम ध्यान से देखो तो वो n के बराबर होना चाहिए। देखो एक बार, व्हाट इज 2 plus 8 10, व्हाट इज 2 plus 3 5, व्हाट इज 3 plus 4 7। सो वी आर फाइंडिंग दैट जब भी दो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट इक्वल होता है, ठीक है, तो फिर दोनों का n का वैल्यू सेम होने के साथ साथ अगर r का सम n के बराबर हो तो इक्वल होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं, और द सेकंड कंडीशन इज इफ r1 is equals to r2 और इफ r1 is equals to r2 वी कैन से। तो दो कॉम्बिनेशन इक्वल कब होता है, अगर दोनों का n का वैल्यू सेम है, उसके साथ साथ अगर दोनों का r का सम अगर n के बराबर है तो इक्वल होगा, या फिर दोनों का r अगर इक्वल होगा तो बराबर होगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 7c2 is equals to 7c2, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं ये बोलूं कि 7c2 is equals to 7c2, so is this wrong or right? Absolutely right, because दोनों का n सेम है और दोनों का r भी इक्वल है। तो दोनों का n सेम होने के साथ साथ दो कॉम्बिनेशन का वैल्यू इक्वल कब होगा, अंडर द कंडीशन व्हेन r1 equals to r2 और दोनों का सम अगर n के बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं। तो यहां से अगर तुम देखो तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है, ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे इस पूरे चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अगर देखो तो कैलकुलेशन जो भी मैंने दिखाया, मैं वो क्या चीज को समझाना चाहता था, मैं यही प्रॉपर्टी को समझाना चाहता था। देखो कि अगर दो कॉम्बिनेशन है तो फिर जैसे मान लो 100C2 का वैल्यू और 100C98 का वैल्यू सेम होगा, जैसे 7C5 का वैल्यू और 7C2 का वैल्यू सेम होगा। कैसे? 7 - 5 2, 7 - 2 5। हियर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 5 + 2 7, तो इक्वल हो। समझ में आया बात? सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। नाउ वन मोर थिंग इज द कैलकुलेशन पार्ट। लेट मी हियर फ्रॉम यू ऑल। एक बात बताओ तुम लोग, जैसे परम्यूटेशन में तुम लोग कुछ शॉर्टकट कैलकुलेशन देखा था ना तुम लोग, जैसे कि अगर मान लो सपोज वी हैव गॉट 7p3, डू यू रिमेंबर दैट? अगर ये 3 है तो हम 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे बताओ तो? 7 × 6 × 5। डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? यस और नो? टेल मी। Yes, sir. था ना शॉर्टकट? जैसे 3 है तो हम 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 7 × 6 × 5 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 है। 4 होता तो क्या लिखते हैं? 7 6 5 4 तक 1 2 3 4 फैक्टर लिखते हैं, 4 फैक्टर। 4 है तो 4 फैक्टर, 3 है तो 3 फैक्टर, 2 है तो 2 फैक्टर, 7 फैक्टोरियल का। अब ठीक वैसे ही लेट मी हियर फ्रॉम यू ऑल कि यहां से देख करके तुम लोग क्या एक वो कैलकुलेशन तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यस, क्या वो शॉर्टकट तुम लोग को लग रहा है दिमाग में कि ये चीज ऐसा हो रहा है? बताओ प्लीज, देखिए बताओ। यस, तुम लोग ये दूसरा वाला पार्ट छोड़ो, एक काम करो, इसको इससे थोड़ा एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करके मुझे बताओ। ये वाला पार्ट देखता हूं, देखते कौन बोलता है। यस, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। You just think how to, I mean, I'm just showing you everything कि तुम मुझे बता दो ये देख करके कि क्या होगा। Yes, बताओ। Yes, Arya, answer should come from your side, everyone. क्या बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? Yes? Come on, at least कोई एक जान तो बोलो। सो हम लोग n into n - 1 से मल्टीप्लाई करेगा r टाइम्स r नीचे r फैक्टोरियल। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? क्या बोला उसने? तुम लोगों को समझ में आया? कोई और मुझे बता सकता है? बहुत लोग है लेकिन बता नहीं रहे कोई भी, क्या बात है? सबको जगह है ना? लाइक कैन यू स्टार्ट योर वीडियो? आंसर में यस। देखो दूसरा जो शॉर्टकट हम लोगों ने यहां से डिराइव किया वो ये है कि जैसे 10C2 है, देखना यहाँ पे 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 10 फैक्टोरियल को? 10 × 9
डिवाइडेड बाय 2 into 1, मतलब 10 फैक्टोरियल का 2 फैक्टर एंड इस पूरी ये जो r है ना, r का पूरा फैक्टोरियल लिखना है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100c3, सो हु कैन टेल मी इन अ लाइन व्हाट इज दैट शॉर्टकट? यस टेल मी। 100 into 99 into 98. दर्शन एक चीज है, तुम ना ये एक काम करो, शायद तुम स्पीकर यूज कर रहे हो, ये स्पीकर डिटैच कर दो, तुम्हारा आवाज बहुत वियर्ड है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत भारी आ रहा है, तो हटा दो। आई थिंक सर अब से यार हाँ भी ठीक है, बेटर है पहले से। आप लोग सर 100 into 99 into 98 by 3 into 2 into 1. 100 into 99 into 98 divided by 3 into 2 into 1, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे 3 है तो 100 फैक्टोरियल का 3 फैक्टर और डिनोमिनेटर में इस पूरा का फैक्टोरियल यहाँ पे रिप्रेजेंट है। क्लियर? अब मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100c 97, तो तुम क्या करोगे बताओ? तो 100c 97 अगर मैं पूछूं तो तुम क्या करोगे, बता सकते हो? 100c 97, यस, विल यू राइट 100 का 97 फैक्टोरियल, मतलब आई मीन 100 का तुम 100 फैक्टोरियल का 97 फैक्टर्स लिखोगे? यस, टेल मी। सर So You we'll not write write the that. same 100 into 99 into 98. देखो यस एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ध्यान देना, अब ये मत बोलना सर आपने जो कहा था कि भी शॉर्टकट बताया था कि ये 3 है तो इसको 3 बार लिखो, 97 है तो यहाँ पे 100 को 97 फैक्टोरियल टाइम्स लिखो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसके पहले मैंने ये भी तो बताया था, इसके पहले मैंने ये भी तो बताया था कि 100c 97 का वैल्यू और 100c3 का वैल्यू सेम होता है, बताया था कि नहीं? तो तुम बताओ एक बार मुझे, 100c 97 का अगर कैलकुलेशन में तुम ये शॉर्टकट लगाओगे तो 100 फैक्टोरियल को 97 बार लिखोगे, 100 into 99 into 98 into 95 into 94 into 90 पूरा 97 बार? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि 100c 97 का में शॉर्टकट लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, 100c3 लिख देंगे, and this is 100 into 99 into 98 divided by 3 into 2. I hope it is clear to you all, everyone. Is this clear? Okay, next. So I want everyone to copy down first. Okay, पहले कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. Now everyone note down the last relationship. Okay, the last relationship which I want to ask you all, that is, see, you all know that the formula of NCR is n factorial by n minus r factorial into r factorial. The value, I mean the formula of NPR is n factorial by n minus r factorial. Now can you derive the relationship between these two formula? Can you tell me कि ये दोनों formula कैसे related है, बताओ तो। एक मतलब एक इक्वेशन निकालो जिसमें दोनों का रिलेशनशिप आएगा, बताओ तो। एनीवन? यस, बताओ तो दोनों कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, बताओ तो दोनों फॉर्मूला को। अगर एनसीआर का ये फॉर्मूला है और एनपीआर का ये फॉर्मूला है तो एक रिलेशनशिप डिराइव करके दिखाओ तो फटाफट। ये तो कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं तुम लोग से कि ये तुम लोग आंसर दोगे। Sir, NCR is equals to NPR divided by R factorial. वेरी गुड, वेरी सिंपल। देखो, वी नो दैट एनसीआर इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो एक बात बताओ, ये पार्ट को तुम ध्यान से एक बार देखो तो ये क्या है, बताओ तो। एनपीआर है कि नहीं? सो वी कैन से दैट एनसीआर इज एनपीआर डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन एंड द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन। मतलब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है, अगर हम बोले तो कैसे रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप होता है कि एनसीआर एनपीआर बाय आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। एक बार फटाफट ये भी कॉपी करो, ये है तीसरा पार्ट, कॉपी करो। अब मैं एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, देखना एक बार। Now we are starting question number G now. G, okay? Yeah. So I'll begin from question number G का number 2 का first question. सर हमारे पास ये है नहीं, जी क्वेश्चन है नहीं Yes, हमारे पास। Okay. Yes. So I begin from question number 2 का number 1 and the question is
and the question given is NC7 is equals to NC5. Now you are asked to determine the value of n. हम लोग को यहाँ पे n का वैल्यू डिटरमाइन करना है. कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये दो कॉम्बिनेशंस इक्वल है. नाउ सबसे पहला चीज एक बात बताओ तुम लोग कि अगर हमको लेवल C3 को कैलकुलेशन करने दिया जाता है, लेवल C3 का कैलकुलेशन करने अगर दिया जाता है, तो कृतिका टेल मी, कृतिका, कैन यू हियर मी? कृतिका, unmute yourself. Yes, sir. Kritika, you tell me that if 11C3 can be calculated in a very simple way, which you know, I think. So tell me, Kritika, what is the shortcut to calculate 11C3? Tell me. Yes. Yes. 11C3 का मैंने शॉर्ट अभी बताया था ना, शॉर्टकट एक लाइन में से लिख सकते हो, मतलब. So tell me that. Mayank Mittal, tell me. Mayank Mittal. Yes, sir. What 11C3 का आंसर क्या, मतलब कैलकुलेशन कैसे करोगे तुम? शॉर्टकट जो मैंने बताया था, बताओ ना. Sir, 11 factorial by 3 factorial into 8 factorial. तुम लोग क्लास में कैसे प्रेजेंट है समझ में नहीं. So 11 into 10 into 9 by 3 into 2. Yes, 11 into 10 into 9. शॉर्टकट मैंने बोला ना. Okay. ठीक है. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया 15 11 जा क्या होगा 5 6 1 165. क्लियर? ओके. तो ठीक वैसे ही एक बात बताओ, चेतन जावर बताओ तुम. चेतन टेल मी, NC3 का क्या होगा बताओ. तो इस तरीके से अगर हम सेम लॉजिक को फॉलो करें तो बताओ तो चेतन, NC3 क्या होगा? यस. n into n minus 1 into n minus 2 by 3 to 1. By 3 to 1. It's absolutely correct. Okay. So make sure that if you are able to answer these things, means you have followed the class. हम ये देखो, हम बोल रहे हैं 11C3 का शॉर्टकट पूछ रहे हैं. ठीक है, जो तुमने कहा जैसे कि ये ऐसे होगा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वो गलत नहीं, बट शॉर्टकट मैंने पूछा तो डायरेक्ट बोलो. तो ठीक वैसे NC7 को क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे? n -1 n -2 n -3 1 2 3 4 5 6 7 क्या हम ऐसे लिखेंगे बताओ तो तुम लोग? बाय 7 into 6 नहीं लिखेंगे. No, sir. तो बता सकते हो फिर हम क्या करेंगे इसमें, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? यस, बताओ तुम लोग बताओ. Which property I'll be applying here to this sum? Yes, I'll be applying that property when two combinations are equal. तो जब दो combinations R1 plus R2 equals to N. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वी फाइंड दैट जब दो कॉम्बिनेशंस इक्वल होते हैं तो दोनों का n का वैल्यू सेम होने के साथ साथ, दोनों का n का वैल्यू सेम होने के साथ साथ R1 और R2 का जो सम है वो n के बराबर होना चाहिए या फिर दोनों इक्वल होना चाहिए. लेकिन एक बात बताओ, 7 equal to 5 does it make any sense? क्या हम ऐसा कभी सोच भी सकते हैं कि 1 equals to 2? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? No, sir. 1 एक कांस्टेंट है, 2 दूसरा कांस्टेंट है. वी कैन नॉट थिंक ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, तो वैसे ही हम लोग एक कंडीशन तो ये सैटिस्फाई करेंगे नहीं. तो दूसरा कंडीशन क्या बचा? 7 plus 5 equals to n. And what is the value of n? The value of n is 12. मतलब यहाँ से हम लोग को n का वैल्यू मिल गया. देखो, इतना कराने के बावजूद भी हमको पता है कि एग्जाम में या घर पे ये सम अगर तुम लोगों को दिया जाता है तो घर पे तो एटलीस्ट हो जाएगा. एग्जाम में क्या आएगा पता है? ये सब कुछ दिमाग से एकदम उड़ जाएगा. ये सब प्रॉपर्टी सब कुछ दिमाग से चला जाएगा. और बहुत लोग क्या करेगा इसमें, बहुत लोग करेगा n फैक्टोरियल by n minus 7 factorial into 7 factorial. सबको इतना लंबा बना देगा एक मार्क्स का सम को, एक मार्क्स का सम बस इतना लंबा बना देगा कि कंफ्यूज जाएगा. Please make sure that you remember these things. Clear? Now I want everyone right now to follow one more sum and then I will give you the sums. मैं एक और सम कराता हूँ, ध्यान. It is question number 3. That is 20CR. 20CR equals to 20CR plus 6. Now याद रखना तुम लोग कि जब दो कॉम्बिनेशंस इक्वल होता है तो पहला पॉइंट n इक्वल होना चाहिए. दूसरा पॉइंट, दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ही फॉलो करना पड़ेगा. दोनों नहीं हो सकता फॉलो. दोनों कैसे होगा फॉलो? दो कॉम्बिनेशन इक्वल होगा
तो फिर दोनों एक बार में कैसे हो सकता है कि ये इक्वल भी और दोनों का सम n के बराबर भी है? समझ रहे हैं ना तुम लोग बात मैं जो बोल रहा हूँ? या तो दोनों का r का वैल्यू सेम होगा या फिर दोनों का r का सम n के बराबर होगा. Either of one condition will follow, not both. So can I say that r equals to r plus 6 is possible? Do you all agree that r equal to r plus 6 is possible or not? Tell me yes. No, sir. It's not No, possible sir. because पहला बात है कि देखो r कैंसिल भी हो जाता है, कुछ नहीं मिल रहा है. लॉजिकली अगर तुम देखो तो एक नंबर वो नंबर से कुछ मतलब ऐड करके वो सेम हो सकता है. Can I say that a number is equal to 2 more than the number itself? It is not possible only. How it is possible? A number is 2 more than the number itself. ऐसा होता है? नहीं. ऐसा हो सकता है 2 times number is equals to 2 more than itself. ऐसा हो सकता है. But ऐसे कैसे हो सकता है? A number is equal to 2 more than itself. A number is equal to 6 times of itself. How it is possible? So that's why देखो पहला चीज तो तुम इक्वेशन को सॉल्व करके भी देख रहे हो कि यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, r कैंसिल हो जाएगा. तो ये पॉसिबल ही नहीं है. This is not possible at all. तो फिर दूसरा कंडीशन फॉलो करेंगे. So दूसरा कंडीशन क्या है? So we can say that r1 plus r2 is equals to how much? n. That is 2r equals to 2r plus 6 equals to 20. That is r equals to how much? 7. Clear? I hope it is clear to everyone now. If there is anyone who has got doubt. Now, sum number 2 ka 5. What is the answer? 2 ka 5. What is the answer? N minus 1. So r is equal to n minus 1. Yes, because you just have to write r in terms of n and nothing else. You don't. बहुत लोग इसमें खोज में पूरा पड़ गया होगा. यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा? अरे r का वैल्यू सिर्फ निकालना है in terms of n. मतलब क्या होगा डायरेक्ट? यहाँ पे बस एक लाइन में r plus 2 equals to 2n. तो 2r equals to 2n minus 2. r equals to n minus 1. खत्म. ये आंसर और कुछ नहीं करना. उसके बाद दूसरा पॉइंट दूसरा सम नंबर 7 में काफी लोग का आंसर थोड़ा डिफर कर रहा है, तो मैं एक बार ये बता देता हूं, ध्यान रखिए. क्वेश्चन नंबर 7 में see everyone, it's already given to us that the value of NPR is 720 and the value of NCR is 120. So what is the value of R? We are asked to determine the value of R. So just note down. You know the relationship between permutations and combinations? We know that combination, that is NCR, is NPR divided by R factorial. What is the value of NCR? 120. 720. Cross multiply. So it is 720 by 120. That is R factorial equals to 6. Now listen here students, this is a very important line where I will show you how to express any number in factorial form. Rishika का answer 6 आया था, I can still remember. I think it was Rishika or someone else. I think it was Rishika. Now what mistake you have done is, see R factorial equals to 6. How can you write it? R equals to 6. तुम्हारा यहाँ तक right है, यहाँ तक right है, लेकिन इसके बाद तुमने गलती किया. क्या गलती किया? कि R factorial अगर 6 है तो हम लोग R6 कैसे बोल सकते हैं? हम लोग को कंपेयर करना. मान लो R factorial equals to 7 factorial, तो ही हम बोल सकते हैं R equals to 7. यहाँ factorial form में नहीं है. किसी का आंसर आया था 7. That was absolutely wrong. You have made some mistake in somewhere. देख लेना. जिसका 6 है वो यहाँ तक राइट है, जिसका 3 है वो एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके आगे ध्यान देना. अब 6 को क्या करना तुम लोग पूरा फैक्टराइज कर दो. प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज कर दिए. अब देखो मुझे इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है 6 को. अब तुमको पता है, जैसे देख के तो पता ही चल रहा है कि 1 into 2 into 3 is 6 फैक्टर 6. ओके, बट हम थोड़ा सा एक लॉजिक बताते हैं कि कैसे हम लोग बहुत बड़ा नंबर्स को भी फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे. ध्यान देना. जैसे फैक्टोरियल में सबसे पहले 1 होता है तो 1 यहाँ लिख दो और यहाँ पे 1 कैंसिल कर. उसके बाद क्या आता है 2 लिख देना, 2 कैंसिल कर. उसके बाद क्या आता है 3 लिख देना, 3 कैंसिल कर. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन कन्वर्ट इन फैक्टोरियल फॉर्म. 3 factorial. If you compare both the sides, what is the value of R? The value of R is 3. Clear? So everyone note down number 2 का number 8 एक बार बता दो. 2 का number 8. Okay.
So we have got NC R minus 1 equals to NC 3R. So either one of, either of the condition will follow. Means either this will be equal to this, either R minus 1 equals to 3R, but this is not possible. Just check once. क्या R का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? क्या R का वैल्यू फ्रैक्शन हो सकता है? नहीं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि वो पॉसिबल क्यों नहीं है. देखो लिखा हुआ R equals to minus half is not possible. So we have the second case, that is 3R plus R minus 1 equals to N, and we have to determine the value of R. So 4R equals to N plus 1, R equals to N plus 1 by 4. ये हो गया R का वैल्यू. Okay, so 2 का सारा हो चुका. Number 3 now. 3 का 1. Hurry up, try. So question number 3 का 1 देखना एक बार. So we have N plus 1 CR plus 1 is to NCR equals to 11 is to 6. So let us determine the equation by solving it. Okay. Now here first of all it is given in ratio form. A is to B can be written as A by B. Now let us apply the formula of combination, that is n factorial n minus r factorial. So if you determine, if you find out the difference of n plus 1 and r plus 1, what is the result you are getting? N minus r. N factorial n minus r factorial into r factorial. Now what is a by b by c by d? It is a by b into reciprocal of denominator part. Now you know that इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे. n plus 1 factorial बड़ा है, so we can write n plus 1. 1 less than n plus 1 is n factorial. Clear? 1 less than n plus 1 is n, और अब हम factorial लेके यहाँ तक स्टॉप कर देंगे. एक और चीज, n minus r factorial तो कैंसिल हो गया. Keep r factorial as it is और इसको reduce कर दो. r plus 1, what is 1 less than r plus 1? r. तो factorial लगा दो. n factorial gets cancelled, r factorial gets cancelled. Let us cross multiply. So we have 6n minus 11r equals to minus 5. Mark it as equation number 1. Similarly, what you will do? Solve the second equation. जो second दिया हुआ है दूसरा वाला part, उसको भी solve करो. इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. So it is n factorial n minus r factorial into r factorial, n minus r factorial n minus r factorial r minus 1 factorial. अब क्या करोगे तुम लोग? इसको सिंप्लीफाई करो. अब जिसका आंसर आ गया कोई बता सकता है इसका इक्वेशन क्या है? बताओ तो. इसको सिंप्लीफाई करके n is equal to 2r है सर. n equals to 2r मतलब n minus 2r equals to 0. Mark it as 2. अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो simultaneously and you get the value of n and r. मैं ये बताया नहीं, ठीक है? इसको इसका सिंप्लीफाई कैसे करके आया वो बताया नहीं. सेम तरीके से होगा, ठीक है? कर लेंगे इसको. तो